السلام. شازی ایسی دعا کرتی ہے، خود روتی ہے دوسروں کو بھی رلا دیتی ہے. چلو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے وائی جیسس کیم. یسوع مسیح کیوں آئے. کئی سوال کئی جواب آپ کو ملتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، جانا ہوگا، لیکن اتنی بھی کیا ضرورت ہے. یہ لوگوں کو چکروں میں ڈالا ہوا ہے. کوئی کرسمس ٹری کے چکروں میں ہے، کوئی اپنا گھر کو سجانے لائٹوں کے چکروں میں ہے، کوئی کپڑوں کے چکروں میں ہے. بڑے سے چکر یہ ڈالے ہوئے ہیں. جیسے وائی جیسس کے لیے آنے کی کیا ضرورت ہے جو سانو سا چاڑے ہے سارے. لیکن اس کی کلام کیا تصدیق کرتا ہے کہ یسوع مسیح کیوں آئے. تو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ٹو فلفل دا پروفیسیز، پیشن گوئیاں پوری کرنے کے لیے. سو یہ شروعات میں یسایہ نبی جو ہے اس نے کئی بار اپنے یسایہ کی کتاب میں یسوع مسیح کی آمد کا ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اور کئی انبیاء کرام نے یسوع مسیح کی آمد کا ذکر کیا ہے. لیکن آج ہم صرف یسایہ نبی کی بابت دیکھیں گے کہ اس نے کتنی بار ہی ایک ہی کتاب میں یسوع مسیح کی آمد کا ذکر کیا ہے. عیسائیہ چیپٹر 7 ورس 14، یسایہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت. لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. The Lord will himself will give you the sign. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی. Look, the virgin will conceive a child. اور بیٹا پیدا ہوگا. She will give birth to a son. اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. And will call him Emmanuel. یسایہ نبی کے وہ جو لکھا ہے، تصویر تھوڑی چھوٹی ہے، وہ یہی لکھا ہے کہ and he will call him Emmanuel. پہلا جو پروف یسایہ 7واں باب اس کی 14ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ تمہیں ایک نشان ملے گا، کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام ایمانویل رکھے گی، جس کا ترجمہ ہے خداوند ہمارے ساتھ. یسایہ 9واں باب اس کی 6 آیت. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یسوع کیوں آیا، Why Jesus came. یسایہ 11واں باب اس کی پہلی آیت میں، اور یسی کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی. یہ تیسری پیشن گوئی وہاں نظر آتی ہے. داؤد کے باپ کا نام یسی تھا. یسی کے تنے سے ایک کمپل نکلے گی. آؤٹ آف دا اسٹمپ آف ڈیوڈ فیملی. اسٹمپ میں رہتی تو جب درخت کاٹ دیا جاتا ہے تو پنجابی میں جس کو ہم منڈ کہتے ہیں، یہ اسٹمپ ہے، تو اس کی جڑیں نیچے جاتی ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں. اور یسی کے تنے، داؤد جو ہے، ڈیوڈ جو ہے، اس کے باپ کا نام یسی تھا. اسی برانچ سے، اسی فیملی سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کمپل نکلے گی. لوکا 2 باب 11ویں آیت میں ہم جب نئے آیت میں آ جاتے ہیں تو یہاں ہمیں ملتا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. The Savior has been born today in Bethlehem, the city of David. تو یہ جو پروفیسیز یسایہ نبی نے کتنی ہی بار یسایہ کی کتاب میں کی ہے، یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ پوری ہو رہی ہے. نئے عہد نامے میں جب یسوع پیدا ہو جاتا ہے تو لوکا رسول اس کو وہی شکل، وہی بات کرتا ہے جو یسایہ نبی نے کی. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. ان تمام حوالوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یسایہ نبی جو ہے یسوع مسیح کی پوری شروع سے لے کر آخر تک ساری جو منسٹری ہے اس کے حوالہ جات وہاں درج ہیں، پیشن گوئیاں وہاں درج ہیں کہ یسوع مسیح پیدا ہوگا اور کماری حاملہ ہوگی. نشان ہے. دوسرا نشان ہے وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا. تیسرا نشان داؤد کی نسل سے ہوگا. چوتھا نشان ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. جیسا یسایہ نبی نے پرانے عہد نامے میں لکھا ہے
वैसा ही नए अहद में हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें 100% नजर आती हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है टू फुलफिल द लॉ, शरीयत को पूरा करने के लिए है। यीशु मसीह शरीयत को पूरा करने के लिए है। ये वाला बहुत कम पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत ही कमाल का है। लूका 4 बाब उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत, और वो नासरत में आया जहां उसकी परवरिश पाई थी, और अपने दस्तूर के मुआफिक एज यूजुअल, गौर से सुनेंगे, अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया। तो दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन, इसका मतलब ये है मेरे चीजों कि हर सबत को यीशु मसीह दस्तूर के मुआफिक हैकल में जाता था। ऐसा नहीं एक संडे छुट्टी मार लो, एक संडे मेहमान आ गए, एक संडे जो मर्जी हो, संडे को यीशु मसीह यहाँ एग्जाम्पल हमें देते हैं, और अपने दस्तूर के मुआफिक सबत के दिन इबादत खाना में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। यीशु मसीह अभी कहते हैं कि अराउंड 12 ईयर, 12 साल की एज के हैं, और डिजाइन ये होता था कि 3 सेक्शन जूश कल्चर में होते थे। तौरात की किताब पढ़ी जाती थी, उसके बाद दूसरा सेक्शन था नबियों के सहीफे पढ़े जाते थे, और उसके बाद तीसरा ये था, पहले प्रस्तश होती थी, फिर तौरात में से पढ़ा जाता था, फिर नबियों के सहीफे पढ़े जाते थे। तो जब यीशु मसीह वहां बैठे हैं तो ये वहां ये नहीं होता था फलां को बुलाएंगे फलां को, वो एक सिस्टम ऐसे होता था कि ये हवाला पढ़ना है, वो आकर खुद पढ़ते थे। तो यीशु मसीह जो कि अभी बच्चे हैं 12 साल के 13 साल के, ये चले जाते हैं तो सहीफा क्या पढ़ते हैं, और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई, और किताब खोलकर उसने वो मुकाम निकाला जहां ये लिखा था, खुदावंद का रूह मुझ पर है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई, पानी की खबर सुनाऊं, कुचले मुंह को आजाद करूं, और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। फिर वो किताब बंद करके और खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उस पर लगी थी, और वो उनसे कहने लगा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। The scripture you have just heard has been fulfilled this very day. This very day. तो यीशु मसीह ने क्या किया कि उनको जब पढ़ने के लिए दिया तो उन्होंने नबियों का सहीफा पढ़ा, और सहीफा क्या पढ़ा, यही पढ़ा जो यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि मुझे इसलिए खुदा का रूह मुझ पर है, रूह तुझ पर नाज़िल होगा और तू हामला होगी और बेटा जनेगी। रूह मुझ पर है और मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, कैदियों को रिहाई दूं, अंधों को बेनाई दूं, कुचले हुओं को आजाद करूं। और फिर मत्ती रसूल 5वां बाब उसकी 17वीं आयत में ये लिखा है, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। Do not misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses or the writing of the prophets. No, I came to accomplish their purpose. तो जब मैं इंग्लिश में पढ़ते हैं accomplish their purpose, इसका मतलब ये है कि मैं इसलिए आया हूं, मिटाने नहीं, खत्म करने नहीं, पूरा करने आया हूं कि यही बातें जो अंबिया किराम कोशिश करते थे कि हम इसको पूरा करें, मैं उसको पूरा करने, उनसे नहीं हो सकता था, उनसे नहीं हो सका, मैं इसलिए आया हूं कि ये मनसूख करने नहीं, शरीयत को पूरा करने आया हूं, क्योंकि उनसे नहीं हो सकता। इफिसियों 2:15-16 आयत में उसने अपने जिस्म के जरिए से अकम्प्लिश कैसे किया, किसी नबी ने जो इससे पहले आए हैं ऐसे नहीं किया, इसीलिए वो अकम्प्लिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक ही बेटा था जिसने इसको पूरा करना था। इफिसियों 2:15 और 16 आयत में चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ कर दी। ये जो हुक्म थे शरीयत के, ये ला थे,
کہ اگر آپ کو کوئی یہ کرتا ہے اس کو یہ کاٹو، دانت توڑتا ہے اس کا دانت توڑ دو، کوئی قتل کرتا ہے اس کو قتل کر دو. جو کوئی اس کے لا بنے ہوئے تھے شریعت کے موافق زندگی گزارنا بہت ہی مشکل تھا لوگوں کے لیے. اگر آپ ایون پرانے عہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر تو رسول پہ لعنت کرتا ہے تجھے قتل کر دیا جائے. یہی بلاسفیمی راہ ہے، یہ ہماری بائبل میں لکھا ہے کیونکہ یہ شریعت میں تھا. افسیوں 2:15-16 آیت، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کرے. دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. دونوں کی جب بات ہوتی ہے تو میرے چیزوں یہاں پر جیوش اور جینٹائل، جو جیوش ہیں اور جو غیر جیوش ہیں، جو غیر قوم والے ہیں، ان کی بات کر رہا ہے. کرسمس کا مطلب یسوع مسیح کا صرف پیدا ہو جانا ہی نہیں ہے. جو مین یہاں پہ بات ملتی ہے کہ یسوع مسیح کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ جو جیوش ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سپیریئر قوم ہیں، ہم خدا سے باتیں کرنے والے ہیں، ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، اس لیے ہم سپیریئر ہیں، باقی ساری قومیں حقیر ہیں اور چھوٹی ہیں. یسوع مسیح نے ایک تو وہ فرق مٹانے کے لیے کہ جیوش ہو یا جینٹائل ہو، آپ جیوش ہیں یا غیر جیوش ہیں، آپ کو یسوع مسیح کے آنے سے وہ درجہ، اگر آپ چھوٹے ہیں تو آپ کو بڑا کیا گیا ہے، اور اگر آپ جوش بڑے ہیں تو آپ کو چھوٹا کر کے ایک نیا انسان کرسچینٹی تھی. یہ لوگ جوش اور غیر قوم والے، کرسچینٹی یسوع مسیح کے آنے سے پہلے موجود نہیں تھی. کرسچینٹی اس وقت وجود میں جب یسوع آیا اور اس نے کیا کیا، ایک نیا انسان بنا دیا. پہلے جوشزم اور بتوں کی پوجا کرنے والے دو قسم کے لوگ پائے جاتے تھے. کرسچینٹی بنانے کے لیے یسوع مسیح نے اس فاصلے کو صلیب کے اوپر اپنے آپ کو قربان کر کے یہ دکھا دیا کہ نہ وہ چھوٹے ہیں نہ تم بڑے ہو، میں چاہتا ہوں. کیونکہ جب باغ عدن سے آدم اور حوا کو نکالا گیا اس وقت سے لے کر میرے عزیزو خدا ناراض تھا انسان سے ناراض رہا تھا. صرف تین لوگ تھے جن سے وہ بات کرتا تھا اور اس کو کرنی پڑتی تھی. کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا میاں بیوی ناراض ہوتے ہیں، گھر میں بھی ایک میں رہتے ہیں، بات بھی تھوڑی بہت ہی کرتی ہے، تعلق نہیں ہے ٹھیک. وجہ کیونکہ رشتہ ہے، انسان کے ساتھ خدا کا رشتہ موجود تھا لیکن بات نہیں انسان سے کرتا تھا. اگر بات ہوتی تھی تو انبیاء سے کرتا تھا، بات ہوتی تھی تو بادشاہ سے کرتا تھا، بات ہوتی تھی تو ہیکل کے پیچھے پردہ کاہن کے ساتھ کرتا تھا. یسوع خدا صرف اس وقت 3 قسم کے لوگوں سے گفتگو کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ انسان سے ناراض تھا. جو آدم اور حوا نے غلطی کی تھی اس وجہ سے وہ ابھی تک ناراض تھا، لیکن اس ناراضگی کو مٹانے کے لیے صلیب کا انتظام کیا گیا. ایک نیا شخص خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ درمیانی بن کر جو چھوٹے ہیں ان کو بڑا کرے، جو بڑے ہیں ان کو چھوٹا کر کے ایک کرسچینٹی، ایک مسیحیت وہاں سے نکلے تاکہ خدا کا جو وہ پلان ہے، منصوبہ ہے، اس کو پورا کیا جائے. اور یہ منصوبہ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ وہ شریعت کو پورا کرے. شریعت کے مطابق رہنا بہت مشکل تھا، اس لیے یسوع آیا تاکہ وہ اس کو پورا کرے. نبیوں سے یہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ یہاں قربانی کا ہونا ضرور تھا، اور قربانی یہ انسان کی ہونی ضروری تھی، اور اس کا جو اکلوتا بیٹا ہے وہی دے سکتا تھا کیونکہ اس کے بیٹے نے قربانی دے کر اس فرق کو مٹا دیا اور ایک نیا انسان مجھے اور آپ کو کرسچینٹی کا نام دے دیا، مسیحیت کا نام دے دیا. اس لیے اس نے اس قانون کو، شریعت کو پورا کر دیا. اب میرے چیزوں ہم آزادی سے رہتے ہیں، ہمارے اوپر لا موجود نہیں ہے، ہم فضل کے نیچے ہیں. ہمیں اسی وقت سزا نہیں ملتی کیونکہ اس کے فضل نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے. جب ہم یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو میرے چیزوں اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننے کا ہمیں حق مل جاتا ہے، کیونکہ وہ اس لیے آیا کہ شریعت کو پورا کرے. اور شریعت یہ تھی کہ
लागू थे कानूनों के अंदर रहना बहुत मुश्किल था। आप जाएं जोशिज्म में, आप जाएं मुस्लिमिज्म में, वहाँ पर जो कानून बने हैं, लोगों को मुसीबतें पड़ी हुई हैं उन कानूनों की। आप खुशकिस्मत हैं, आप मसीही हैं, आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ चाहें जो चाहें करते हैं, लेकिन उसके डर और खौफ में करें। सो पहला पॉइंट था यीशु इसलिए आया कि प्रोफेसीज पूरी हों। दूसरा इसलिए आया कि वो शरीयत जो है उसको पूरा करे। तीसरा पॉइंट, आउट ऑफ द डार्कनेस एंड डिजीजेस, वो लोग जो तारीकी में अंधेरे में रहते थे उनको निकाले। यशायाह 9 बाब उसकी दूसरी आयत, कोई पढ़ने का रहनुमाई करे। यशायाह 9 बाब उसकी दूसरी आयत, ये तारीकी के लिए है कि यीशु मसीह इसलिए आया हमें अंधेरों से, हमें तारीकियों से। कितने लोग, ये देखिए तस्वीर के ऊपर, ये उस वक्त की तस्वीर लगता है जब तारीकी में रह रहे थे। जो लोग तारीकी में चलते थे, जो लोग तारीकी में चलते थे, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। जो तारीकी में चलते थे, एक चलने की बात है और एक रहने की बात है। जो तारीकी में अंधेरे में चलते थे, सारे काम उल्टे करने, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। द पीपल who walk in darkness, for those who live in the land of deep darkness। तो अभी दो किस्म के जो चलते हैं तारीकी में और जो तारीकी के मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन तारीकी में गुजार रहे हैं, चल रहे हैं लेकिन तारीकी में चल रहे हैं, उनकी बात है। जो तीसरा पॉइंट, यीशु क्यों आया? यीशु इसलिए आया कि उन लोगों को अंधेरों से, तारीकियों से निकाले। लूका 1 बाब उसकी 79 वर्ष में इस तरह लिखा है, ताकि जो अंधेरे और मौत के साया में बैठे थे रोशनी बख्शे और हमारे कदमों को सलामती की राह पर डाले। यशायाह 42 बाब उसकी 7वीं आयत, कि तू अंधों की आंखें खोले और असीरों को कैद से निकाले और उनको जो अंधेरे में बैठे हैं कैद खाना से छुड़ाए। You will open the eyes of the blind, free the captive from prison, release those who sit in dark dungeons। तो dark dungeon है मेरे चीजों, पाकिस्तान में जैसे कहते थे ना, अंधेरी कोठरी से जेल छुपा देता है, जड़ी जमीन अंडरग्राउंड होती है। तो कैद खाना का जिक्र जब यहाँ लिखा है, ये अंडरग्राउंड कैद है जहाँ पे अंधेरा है, आपको बस रोटी पहुँचा देते हैं लेकिन आपने वहीं रहना है। मरकस 1 बाब उसकी 34वीं आयत, और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, और बदरूहों को बोलने ना दिया। कई बार मेरे जो कहते हैं कि ये भाई साहब बदरूहें, खासकर जो पेंटिकॉस्टल से पार हैं, वो बदरूहों नहीं निकालते, वो डरते हैं क्योंकि बदरूहें उनको आगे से मारती हैं। तो क्यों मारती हैं? क्योंकि उनमें फेथ की कमी है, क्योंकि वो पहले कर रहे हैं कि पता नहीं बदरू ने सच लड़की करने हैं, इसलिए भाइयों ने बुलाओ कि ये बदरूआ कर भाइयों ने क्यों बुलाओ? क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है। जब इख्तियार दिया तो फिर डर किस बात का है? लेकिन क्या लिखा है? और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया। मेरे चीजों, यीशु मसीह हमें अंधेरों से, तारीकियों से निकालने के लिए आया है। जैसा हमने देखा, जो तारीकी में चलते थे, जो मौत के साया में रहते थे, जो अंधेरों में रहते थे, और जो असीरी में, जेल में है, जेल के कैद खाना में है, और वो लोग जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे, यीशु मसीह ये कहने के बोनस देने आया था। मेन मकसद जो था, इंसान की खुदा के साथ जो नाराजगी हो गई थी उसको सुलह कराने के लिए आया था। लेकिन कई बार ये होता है कि एक इंसान आया है और जो बीमार है, क्योंकि ये बोनस में ठीक होते रहते हैं। यीशु मसीह ने कोढ़ियों को, मफलूजों को, टुंडों को, गूंगों को, अंधों को, बहरों को, और हर किस्म की लिखा है, हर किस्म की बीमारी के लोग जो मुब्तला थे उनको ठीक किया। क्योंकि जीसस ने कि हमें डार्कनेस से, हमें अंधेरों से, हमें तारीकियों से निकालने के लिए आए। हमें
जो मौत के साया में रहते थे, जिन पे मौत मंडलाती रहती थी हर वक्त, उनसे निकालने के लिए आया। और हमें जेल खाना से, असीरी में अगर हमें पकड़ के ले गए हैं, वहां से बचाने के लिए आया। और इसके अलावा इसलिए भी आया कि मैं और आप शिफा पाएं, क्योंकि लिखा है वो शाफी होगा और शिफा देगा। मेरे और आपकी शिफा का इंतजाम वो कर गया है। यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें अंधेरों से, गुनाहों से, बीमारियों से निकाले। और जो हमारा चौथा पॉइंट है, डिफीट द डेविल। ये डरे नहीं, ये सांप की पिक्चर है। वैसे सांप से डरते हैं, सांपों वाले काम करें तो वो फिर डर नहीं आता। तो सांप के लिए ही डिफीट, जो चौथा मकसद था यीशु मसीह का आने का, डिफीट द डेविल। इसकी आवाज को क्या बोले, ये बंद कर दे। डिफीट द डेविल, शैतान पर गालिब आने के लिए। मुकाशवा 12वां बाब उसकी 11वीं आयत रेवलेशन में लिखा है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। अगर गालिब आना चाहते हैं बदरूहों पे, शैतान पे, तो फिर बर्रे का लहू आपके जिस्म पर होना जरूरी है। शैतान से मौत और आलमे रुआ की चाबियां छीनने के लिए यीशु आया। Why Jesus came? चौथा पॉइंट ये है, शैतान पर गालिब आने के लिए, शैतान से मौत और आलमे रुआ की चाबियां छीनने के लिए। ये मौत, आलमे रुआ क्या थी? कई लोग बिलीव नहीं करते कि यीशु मसीह आलमे रुआ में चला गया। तो मेरे शिष्यों, जब यीशु मसीह की मौत हुई, होता ही ये था कि जब तक यीशु मसीह जिंदा होकर आसमान तक नहीं गए थे, हर इंसान जो मरता था वो नीचे आलमे रुआ में उसकी रूह जाती थी। और यही था, जिस तरह ये एक दरवाजा है, दरवाजे से हर एक शख्स उसी दरवाजे से जाता था, लेकिन एक साइड जो थी वो जो खुदावंद को प्यार करने वाले लोग हैं उनके लिए थी, दूसरी साइड जो शैतान को प्यार करने वाले हैं उनकी साइड थी। यीशु मसीह मरने के बाद नीचे गया और इख्तियार छीना, क्योंकि शैतान को इंसान की मौत और इंसान को के पास इख्तियार था, उसके पास चाबियां थी। इसलिए यीशु मसीह को भी नीचे जाना जरूर था, ताकि जब जिंदा हो तो जाकर हमारे लिए हेवन के दरवाजे खुले। यीशु मसीह इसलिए गया कि वहां से चाबियां छीने, इब्लीस के कामों को मिटाने के लिए। यह ना पहला यूहन्ना 3 बाब उसकी 8 में मोहब्बत सिखाने के लिए, हक की गवाही देने के लिए, हमारा फिदिया देने के लिए। मत्ती 20 बाब 28 में लिखा है, चनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के फिदिया में दे। हमारे लिए फिदिया देने आया, हमें अपने बेटे और बेटियां बनाने के लिए आया, हमें सबसे बड़ा काम निजात देने के लिए आया। लूका 19 बाब उसकी 10वीं आयत में इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देना है। Why Jesus came, उसका मतलब पीछे ये था कि हमें निजात देने के लिए आया था। यूहन्ना 30 बाब उसकी 17वीं आयत, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। निजात का इंतजाम के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। पहला तीमुथियुस 1 बाब उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये पौलुस रसूल ये बात कर रहा है कि यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि शैतान को कुचले, आलमे रुआ पर मौत से की चाबियां शैतान से छीने, इब्लीस के कामों को मिटाए, मोहब्बत सिखाए, गवाही दे, हमारा फिदिया दे, हमें अपने बेटे और बेटियां बनाए और हमें निजात से आशनास करे, हमें निजात का तजर्बा दे के निजात क्या होती है। उसके बाद 5वां हमारा पॉइंट है, यीशु मसीह खुदा और इंसान की सुलह करवाने के लिए आया। रिकंसिलिएशन, सुलह कराने के लिए आया। प्रॉब्लम क्या थी? ये अगर आप देख रहे हैं तो एक वॉल भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है। तो ये क्रॉस जो है, इसने इंसान और खुदा का मिलाप कराया है। अगर यीशु मसीह आते हैं लेकिन क्रॉस पे अपनी जान कुर्बान नहीं करते, तो यीशु मसीह ये मकसद पूरा नहीं हो सकता।
इंसान और खुदा को मिलाने के लिए क्रॉस जो है ये इसलिए है कि सुलह कराए, क्योंकि वो खुदा उधर बैठे हुए हैं, रूठ कर इंसान इधर बेचारे भटक रहे हैं, लेकिन सलीब है जिसने मिलाप कराया है। खुदा और इंसान की सुलह करवाने के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए यीशु मसीह आया। इफिसियों दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत पढ़ने में रहनुमाई करें प्लीज। इफिसियों दूसरा बाब, एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 14। Why Jesus came? सुलह कराने के लिए, क्योंकि वही हमारी सुलह है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया। वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया, खुदा को इंसान को मिला के क्राइस्ट बना दिया, और जुदाई की दीवार जो बीच में थी ढा दी। जो जुदाई की दीवार है उसको मिटा दिया। ये इसलिए यीशु मसीह, व्हाई जीसस केम, इसलिए आया कि हमारी सुलह जो है इंसान के साथ, खुदा नाराज था, उस नाराजगी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया था कि हमारी सुलह हो जाए। कुलसियों पहला बाब उसकी 20वीं आयत, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, खा वो जमीन की हो खा आसमान की। तो आसमान की क्या है? आसमान की वही है नाफरमानी जो आदम और हवा ने की थी, उसकी बात कर रहे हैं। चाहे नाफरमानी हमने जमीन पे की है, चाहे आदम और हवा ने आसमान पे की थी, उस नाफरमानी को मिटाने के लिए ये सलीब का इंतजाम हुआ है। इब्रानियों 9वां बाब उसकी 12वीं आयत, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अपनी खलासी कराई। बकरों का और बछड़ों का खून लेकर होता क्या था? जब कुर्बानी होती थी तो बकरों और बछड़ों के खून के साथ कफारा होता था। कफारा का मतलब है डांप देना। अगर ये खून बहा है, अगर यहाँ फिल्त है, तो उसको डांप दिया जाए, वाश ना किया जाए। अगर वाश किया है तो यीशु मसीह के खून ने गुनाहों को माफ किया है। इसलिए इब्रानियों 9वां बाब 12वीं आयत में लेकर, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अपनी खलासी कराई। जब भी मेरे अजीजों वही बात आदम और हवा के साथ जब नाराजगी चल रही है, तो यीशु मसीह चूंकि इसलिए आया कि ये जो दीवार थी इंसान की और खुदा के साथ नाराजगी की दीवार जो थी, उसको मिटा दे। क्योंकि आप जानते हैं कि पुराने अहदनामा में हैकल में 3 स्टेजेस थी। एक होली एंड होली, एक होली था, एक ये बरामदा था जहां पर लोग बैठे थे। मेरे अजीजों, खुदा एक बार ही काहिन के साथ बात करता था साल में, और उसको पटका बांधा जाता था, एक रस्सी बांधी जाती थी, ताकि अगर काहिन भी पूरी तरह उसके सरेंडर नहीं है, अगर काहिन में भी कोई गुनाह पाया जाता है, अगर काहिन में भी कोई गलती पाई जाती है, तो काहिन की वहां डेथ हो सकती है। इसलिए उस रस्सी के साथ उस रोप को खींचकर उसको बाहर निकाला जाता था, क्योंकि कोई इंसान उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। क्योंकि यहाँ जहां वहां पर जाकर खुदावंद की हजूरी आती थी, खुदावंद काहिन के साथ बात करता था, खुदावंद काहिन के साथ बोलता था। इसलिए जो है वो जगह पाक थी। लेकिन मेरे अजीजों, यशायाह नबी ने जैसे कहा, उसका नाम इमैनुएल होगा, यानी खुदा हमारे साथ। मेरे अजीजों, ये दीवार डाल दी गई। यीशु मसीह जब जी उठे हैं तो वो दीवार डाल के लिखा है कि हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। खुदा अब पीछे बात नहीं करता, खुदा अब सब जगह मौजूद है। आप चाहे गाड़ी में हो, आप घर में हैं, आप सोफे पे हैं, आप बेड पे हैं, जहां कहीं बैठे हैं, आप खुदा को बुला सकते हैं। ये इसलिए यीशु आया कि वो दीवार जो इंसान और खुदा के दरमियान थी, उसको मिटाकर हमारा खुदा के साथ सलीब के जरिए ये ब्रिज बना दिया, हमारा उसके साथ मिलाप करा दिया, ताकि हम हर वक्त जब चाहे, जहां चाहे, इधर को मुंह करके, उधर को मुंह करके, इधर को मुंह करके, आप जिस तरह चाहे उससे दुआ मांग सकते हैं, और वो सुनने
کہ اب میں نے ایمینوئل کو بھیج دیا ہے, خدا کے بیٹے کو بھیج دیا ہے, جس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ خدا ہمارے ساتھ رہے گا. لیکن اس صلیب کے ذریعے, صلیب ایک برج تھی جو انسان کی اور خدا کی صلح کروانے کے لیے ایک مفید ثابت ہوئی. یسوع اس لیے آیا کہ انسان اور خدا نے جو آپس میں ناراضگی تھی اس کو مٹانے کے لیے خدا آیا, تاکہ انسان کے ساتھ صلح ہو, انسان کے ساتھ بات ہو, اور وہ بھی ان برکتوں کو, ان خوشیوں کو اور اس ہیمن کو جو اس نے تیار کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر جا کر رہے. چھٹا جو ہمارا پوائنٹ ہے, جیسس کیم ٹو گیو لیونگ واٹر. یسوع اس لیے آیا کہ زندگی کا پانی دے. پہلے دیکھا ہم نے لوگ تاریکی میں رہتے تھے, اندھیروں میں تھے, مصیبتوں میں, مشکلوں میں, پرابلمز میں, لیکن یسوع مسیح اس لیے آیا کہ زندگی کا پانی دے. یوحنا 4 باب اس کی 6 آیت سے لے کر 10 آیت تک پلیز پڑھنے میں رحمت کریں. یوحنا 4 باب 36 نامی 10 آیت پلیز پڑھیں. یہ کہانی ہے سامری عورت کی کہ یسوع کیوں آیا کہ ہمیں زندگی کا پانی دے. یسوع سفر سے تھکا مارا ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا. یہ چھٹے گھنٹے کے قریب تھا. تو چھٹا گھنٹہ نون دوپہر کو کہتے ہیں. چھٹا گھنٹہ جب پڑھتے ہیں تو دوپہر کا مطلب ہے. تو یسوع مسیح کنویں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ دوپہر کا وقت ہے, 7 بجے دیکھیں سورج کی روشنی پڑ رہی ہے. سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی. یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا, کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے. اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے. تو یہودی جو تھے سامریوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے, کیونکہ ان کے برتن جو تھے وہ خراب ہو جاتے ہیں. جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں جھوٹے برتن ہو جاتے ہیں. اس لیے سامریوں کی ایک ریزن تھی, وہ بعد میں بتاتا ہوں کیوں سامریوں سے نفرت کی جاتی تھی. یسوع نے جواب میں اسے کہا اگر تم خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا, تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. تھینک یو. تو اسے مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا. 15ویں آیت میں لکھا ہے عورت نے اس سے کہا ہے خداوند وہ پانی مجھ کو دے تاکہ میں نہ پیاسی ہوں نہ پانی بھرنے کو یہاں تک آؤں. 16ویں آیت یسوع نے اس سے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا. عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں. یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں, کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے. یہ تو نے سچ کہا. 19ویں آیت عورت نے اس سے کہا کہ اے خداوند مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے. 25ویں آیت عورت نے اس سے کہا میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خورتس مین کرائسٹ, خورتس مین کرائسٹ. عورت نے اس سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ مسیح جو خورتس کہلاتا ہے آنے والا ہے. جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتا دے گا. 26ویں آیت یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے بول رہا ہوں, میں وہی ہوں, میں آئی ایم دا مسیح. 28ویں آیت بس عورت اپنا گڑھا چھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور لوگوں سے کہنے لگی آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سارے کام مجھ کو بتا دیے ہیں. کیا ممکن ہے کہ مسیح یہی ہے؟ وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے. لوگ جو ہیں وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے. میرے عزیزو یہ جہاں لکھا ہے پہلی جو بات ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح تھکا ماندہ سفر کر کے شاگردوں کے ساتھ دوسری جگہ پہ جا رہے ہیں, لیکن بھوک لگی ہے. جو شاگرد ہیں وہ شہر میں جاتے ہیں کھانا لینے کے لیے.
सामरिया का शहर के पास आ जाता है जहाँ पर वो खाना लेने जाते हैं। अब यीशु मसीह ज्यूश है, ज्यूश फैमिली से आए। अब औरत आती है सामरी और पानी मांगने के, पानी वहां से निकालने के लिए कुएं के लिए, तो वो डिस्कशन होती है। पहले नंबर पर मेरे अजीजों, आप उस कल्चर को, उसको आज भी अगर एक यंग लड़की एक यंग लड़का आपस में बात करते हैं, कितनी दिलेरी आपको चाहिए, कितनी पाकीज़गी आपको चाहिए, कितना अपना आप आपको ठीक चाहिए। और उस वक्त तो बिल्कुल ही नामुमकिन था कि एक यंग आदमी, एक इसको जानता तो नहीं था यीशु मसीह इनके मोहल्ले के लिए थी, ये तो रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ ये पानी भरने के लिए आती है। गुफ्तगू चल रही है और ये कहती है कि ये कुआं जो है ये याकूब का कुआं है, उन्होंने हमें दिया हुआ है, और उसके बेटे यहाँ पानी पीते थे, उनके मवेशी यहाँ पानी पीते थे, यहाँ सारे लोग यहाँ पानी पीकर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तू जिस पानी की बात करता है वो कौन सा पानी है? यीशु मसीह कहता है मैं तुझसे जिंदगी के पानी की बात कर रहा हूँ। और वो औरत कहती है कि जिंदगी का पानी तेरे पास ना कोई बकेट है ना रस्सी है, मुझे जिंदगी का पानी तुमने कहाँ से देना है? अगर तू जानती खुदावंद की बख्शिश को तो मैं तुझे वो पानी पिलाता जो जिंदगी का पानी है। यीशु मसीह, व्हाई जीसस केम, यीशु मसीह क्यों आया? हमें जिंदगी का पानी पिलाने के लिए। और फिर क्या होता है? और वो औरत ने कहा कि मुझे तू पानी पिला दे ताकि मैं दोबारा यहाँ ना आऊं। यीशु ने कहा अपने शोर को बुला ला। व्हाई? क्योंकि यीशु मसीह को पता था इस औरत की जिंदगी का। ये क्रिसमस पे लाटे कपड़े खाने सारा कुछ अच्छा है, लेकिन जो पॉइंट है जिंदगी कैसी है, जिंदगी का यीशु मसीह को पता है। और उस वक्त कल्चर ये था कि ज्यूश और सामरी कौन थे? सामरी ये जब मिस्र से ज्यूश निकले हैं तो कुछ ज्यूश ऐसे थे जो प्योर वही करते रहे हैं जो मूसा ने लिखा था, मूसा कहता था, और उनसे खुदा बात करता था, मूसा से बात करता था, इसलिए वो बहुत मगरूर थे कि खुदा हमारे लीडर से बातें करता है। लेकिन ये जो सामरी थे ये हैफ ब्रीड इनको कहते हैं, ये आधे ज्यूश और आधे जेंटाइल थे, ये पूरे के पूरे ज्यूश नहीं थे। वजह ये खुदा को मानते थे कि कोई सुपरनैचुरल पावर है, लेकिन उसके साथ साथ ये बुतों की भी प्रस्तुति करते थे, बुतों की पूजा करते थे। चूंकि इनकी जिंदगी में दोहरापन पाया जाता था, इसलिए ज्यूश लोग इनको नापसंद करते थे, ज्यूश लोग इनको हकीर जानते थे। और दूसरा, सामरी खुदा को जब जानते थे, बुतों की पूजा करते थे, और छोटी नस्ल हकीर इनको जानते थे। मेरे अजीजों, ये औरत जो है जब यीशु मसीह के पास आती है, सारी स्टोरी चल रही है, यीशु उसको कहता है तू शोहर को बुला ला। वो कहती है मेरे पास कोई शोहर नहीं है। यीशु ने कहा मैं जानता हूँ। यीशु को 5 उसके अंदर ऐसी बदकारियां, ऐसी नाकामियां नजर आती हैं कि तू 5 कर चुकी है, जिसके पास तू है वो भी छठा तेरा नहीं। लेकिन वो औरत क्या करती है? उसने एक बड़ा काम किया है। ये औरत जो है ये बदचलन औरत की बात है। यीशु मसीह बदचलन औरत, कई लोग हैं उनका लाइफस्टाइल ये है कि वो अच्छे लोगों से मिलना पसंद करेंगे, अच्छे लोगों से बात करना पसंद करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने ऐसी कोई तालीम नहीं दी। यीशु मसीह उस औरत के साथ, उस लड़के के साथ अकेले में बात करता है, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मैं बेइल्जाम हूँ, मुझ पे कोई इल्जाम नहीं लगा सकता। अगर अपने नाम के साथ मसीह लगाया हुआ है तो, और आप अनकंफर्टेबल हैं दूसरों से बात करने के लिए, क्यों नहीं आप बात कर सकते? जवान बेटी के साथ, बहन के साथ क्यों नहीं बात हो सकती? आप क्यों कन्वर्सेशन? वजह ये है क्योंकि दिल में खौफ है। अगर नाम मसीह रखा है तो मसीह की बजाय मखनी रख लें, ताकि जो आपके पसंद की बात हो उनके पास जाए। मसीह अगर नाम है तो क्रिश्चियन जो है ये ज्यूश और जेंटल का मेल एक नया इंसान है। अगर आप नए इंसान हैं तो सबसे बात हो सकती है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जब इस औरत से बात की है तो क्या कहा है? उसने कहा मुझे लगता है कि जो मसाया आने वाला है वो तू ही है। और ये अपना गड़ा छोड़कर वहां चली जाती है। गड़ा
मिट्टी का बना है और इंसान भी मिट्टी का बना है। और इस शख्स में जब उस औरत को यीशु मसीह ने जब ये सामरी औरत को कहा तो वो अपना गला छोड़कर वहां पर शहर में चली जाती है और लोगों को बताती है, ये मुझे लगता है ये वही नबी है जो आने वाला था। मेरे अजीजों, उस गड़े में चाहे गुजकारियां हैं, चाहे शब्द प्रश्न है, चाहे झूठ है, चाहे घमंड है, चाहे नफरत है, चाहे बुरी आदतें हैं, शराब नोशी है, ज़िनाकारी है, अगर मेरी और आपकी जिंदगी उस गड़े की मानद है तो उसको उस कुएं पे छोड़ दे जहां यीशु मसीह है और उसके जाकर मनादी करें, शहर में जाए, लोगों को उसके पास लाने का सबब और वसीला बने। अगर मैं और आप आज तक क्रिश्चियन हैं लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर रहे तो मेरे जो बेफायदा है। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो प्रोफेसीज को जो पेशिंग को हैं उनको पूरी करे। यीशु मसीह इसलिए आया कि वो शरीयत को पूरा करे, अंधेरों से निकाले, बीमारियों से शिफा दे, शैतान पर गालिब आए, मौत पर और आलम रवा की चाबियां छीने, इब्लीस के कामों को नेस्त करे, मोहब्बत सिखाए, हक की गवाही दे, हमारा फिदिया दे, अपने बेटे और बेटियां बनाए, निजात का तजर्बा दे, इंसान की और इंसान के साथ, इंसान की और खुदा के साथ सुलह करवाए। और इसलिए आया कि जिंदगी का पानी दे ताकि हम भी उस सामरी औरत की तरह उस गड़े को, नापाक जिंदगियों को वहीं छोड़कर शहर में जाए और बहुत से लोगों को उसकी गुर्बत में बादशाह में लाने का सबब बने।